ऑन। चलिए, नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हुए हैं। आज हम लोग बातें करेंगे एक नए टॉपिक्स पर, और नया टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग्स हमारे लिए इस मायने में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल दो पर्पज से करते हैं। पहला, हम किसी भी सेंटेंस को इम्फसाइज करना हो, अर्थात उसको इम्फैटिक बनाना हो, और दूसरा, हमें डाउट्स की प्रॉब्लम है। सपोज उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए हम जिस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेंटेंसेस होता है हमारा क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, इसमें जो वर्ड क्वेश्चन टैग है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए क्वेश्चंस ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दोस्तों समझेंगे। जैसे यू नो इंग्लिश, आप क्या बनाएंगे? डॉन। ठीक है, अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। He does his work doesn't he? एक और एग्जांपल बात करेंगे। They tell a lie don't. There are three sentences here, and in all the three sentences that are the part of, those sentences are themselves question tags. But what do you mean by question tags? Why we use question tags? Where we use question tag? That is very much important for all of us to know about that. Question tag is most often used in a spoken English when the speaker is talking to the audience, right? And if any work is performed by the audience, but the speaker is not sure whether that activity is performed by him or her or any person or not. Suppose you know English, okay? But if I tell you know English, don't you? तुम इंग्लिश जानते हो ना? Means before telling that sentence, I am in the state of confusion. I have no clear concept whether you know English or not. So, making the concept clear for the confirmations of the speakers, the speaker used that kind of sentences. Okay. Just like you know English, don't you? आप इंग्लिश जानते हो ना? इसका मतलब है कि हम कंफर्म होना चाहते हैं। आपको अंग्रेजी की नॉलेज है ना? यस सर, आई नो। यस, आई नो। He does his work. लेकिन हम क्लियर करने अपना काम करता है, नहीं करता है। He does his work, doesn't he? खुद का काम करता है ना? यानी हम I want to get confirmations. I want to get my clear concept. I want to get the concept clear. They tell a lie, don't they? They tell a lie. ये लोग झूठ बोलते हैं, don't they? झूठ बोलते हैं ना? और बोलते हैं ना? Other sense for making emphasize, for making it emphatic, or another sense for getting confirmations. अब ये सवाल है कि ये जो हमने इस्तेमाल किया डोंट यू, डजंट ही एंड डोंट दे, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। अब हमें ये जो कंसेप्ट क्लियर है कि सर ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर फिर ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव बेटर नॉलेज अबाउट दैट। What is different between question and question tag? तो दोस्तों question and question tags में जब हम differences की बात करेंगे तो we will get major differences. Just like an example, question tag that is
complete sentence, or question that gives complete sense, or that is used completely. Just like, can you help me? Means it question can stand alone, but question tags never stand alone. Have you mentioned don't you anywhere? Have you seen any kind of sentence? Means question tag is forever a part of a sentence. A part of a sentence. Means that it cannot stand alone. It always comes with a sentence. Understand? Second, जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस का इस्तेमाल we use formally. Formally means that is going on. That is the current uses. So questions is just like the formal use of sentences. Formal use of sentences. Of these sentences. But question tags की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये इनफॉर्मल है. For getting confirmation it doesn't require to use this form. हम confirmation होने के लिए we can use some other way. Okay? हम लोग confirmations के लिए हम question tag के अलावा कुछ और भी words का इस्तेमाल कर सकते हैं. Just like example, are you sure that you have a knowledge of English? Means you know English, don't you? क्या सिंगल मीनिंग नहीं आपको मिल रहा है? तो जो क्वेश्चन टैग्स होता है ये इनफॉर्मल इस्तेमाल हम लोग करते हैं. इनफॉर्मल यूज. ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चंस होता है when the speaker questions itself means to inquiry, to ask, to interrogate. तो जब क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं तो स्पीकर ऐसा एक्सपेक्ट करता है दोस्तों कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड. ठीक है, कि जो हमने क्वेश्चंस किया उसको हमें कोई जवाब मिलेगा. बट इन क्वेश्चन टैग्स द स्पीकर डज नॉट एक्सपेक्ट टू हैव एन आंसर, बट द स्पीकर यूज क्वेश्चन टैग्स फॉर गेटिंग confirmation. Understand? So we can say these are the most basic way of just like understanding between question and question tags. तो ये थे दोस्तों, हम लोगों को रफ आइडिया पता चला है. वो पता ये चला है कि जो क्वेश्चन टैग होता है अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है. तो कंप्लीट सेंस देने वाले को हम लोग क्या जानते हैं? सेंटेंस. तो जो क्वेश्चन टैग होता है हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता. वो हमेशा सेंटेंस का पार्ट होता है. लेकिन ये क्या है? क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है. तो अधिक लोग आपको यूज बताना शुरू करें. मैंने इस तरह से बताया था उस समय कि जो क्वेश्चन है वो अपने आप में क्या है? इट इज यूज इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम अदर्स वन. तो मैंने इसके लिए क्या बोला था? इट कैन स्टैंड अलोन. लेकिन जो क्वेश्चन टैग है कभी भी इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं होता है. इस चीज को याद रखना है. क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल इनफॉर्मल हो चुका है दोस्तों. बहुत ज्यादा स्पोकन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. फॉर्मल होता है तो इसको हम लोग मोस्ट ऑफ्टन इस्तेमाल करते हैं. और मैंने अभी आपको बताया था जो मेजर डिफरेंस है कि क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं. जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमारा इंटेंशन यही होता है कि सामने वाला से हम क्या करते हैं? एक आंसर की एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं. लेकिन क्वेश्चन टैग में हम क्यों का उम्मीद रखते हैं? नहीं, क्वेश्चन टैग में हमें कंफर्मेशन मिलता है. ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट है. मैं अब इसको आगे बढ़ेंगे तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप कर सकते हो. चलिए दोस्तों, यदि आपने ये कंसेप्ट को समझ लिया क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स क्या है, तो क्वेश्चन टैग्स को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है वो दोस्तों होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. कॉन्ट्रैक्टेड हम कहें तो शॉर्ट फॉर्म.
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स पे ही डिपेंड होता है। चलिए दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत, और ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम लोगों ने जो भी 6 से 7 चैप्टर्स हमने पढ़ा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें वॉइस, नरेशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन टैग, रिमूवल ऑफ टू, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एम्फैटिक सेंटेंसेस। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है हमारा क्वेश्चन टैग। इसके पहले हम लोगों ने वॉइस को पूरी तरीका से देखा, और आई थिंक वॉइस पर हमने 16 to 17 वीडियोस सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा मेरे इस चैनल पे, आप एक एक करके देखें, वहां से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम लोग जो बातें कर रहे हैं क्वेश्चन टैग्स, और इससे हम लोग आज एक फिर से क्वेश्चन टैग पर एक से वीडियो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन टैग का एक से, और आई शुड जस्ट प्रोसीड 18-19 लाइक दैट, बट विच वन द बेटर वन फ्रॉम बिगिनिंग? Whatever one. So अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होता है? It must be based on your numbers, like as 1 to 3. ओके, It's new series. या तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दोस्तों हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जानना किसका है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दो के साथ हो सकता है। पहले तो हम लोग वर्ब के साथ कर सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का। जैसे हमें लिखना है सपोज ही प्लस, तो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, ही अपॉस्ट्रोफी और एस मेंशन करते हैं, यस। ये इसका मतलब वाज भी होता है दोस्तों, इसका मतलब इज भी होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। लेकिन क्वेश्चन टैग में हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज की हम लोगों की जरूरत है, वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब का निगेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन, जिसमें एक वर्ड आता है एडवर्ब नॉट। और उस नॉट का ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हम लोग बातें कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। तो हम लोगों ने देखा है ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कितने होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हमारे 24, ठीक है। और यदि हम मॉडल्स की संख्या में एक और बढ़ाएं हैव टू को, ऐसे हैव हमारा क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। और जब टू इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मॉडल्स का, तो कहीं आपको लोग 25 बताते हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज। यह माने हमारे नहीं होता है कि 24 और 25, माने ये होता है कि कौन कौन से होते हैं सेंटेंस में, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आप नंबर कहीं नहीं पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी नंबर्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, लाइक दैट नोबडी विल गोइंग टू आस्क, ठीक है। ऐसा कोई सवाल नहीं आपसे मिल जाएगा। तो आइए ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने क्या देखा था, दो पार्ट्स की, कौन कौन से याद है आपको? पहले हम लोगों ने देखा था प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा हमने क्या देखा था, मॉडल्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या है, बताइए कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए, तो ईज को हम लोग नॉट के साथ क्या करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अब सपोज मानकर चलिए कि ये जो डस्टर है ये वाकई में काफी हार्ड मछली है, ठीक है। और यदि सपोज इमेजिन करें कि ये सॉफ्ट होता, हम लोग इधर से भी प्रेस कर रहे हैं और इधर से भी प्रेस कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट जब हम प्रेस करेंगे तो कुछ पार्ट क्या होगा, ऊपर रीच कर जाएगा दोस्तों, जी हाँ। यानी कि ईज को इधर से प्रेशर दे रहा है, नॉट को हम लोग इधर से प्रेशर दे रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एक वर्ड जंप मार जाएगा। जैसे सपोज आप बस में यात्रा कभी किए होंगे, बस काफी मतलब खचाखच भरा हुआ है, और उसमें यदि कोई छोटा बच्चा है उसमें, और भीड़ में क्या होगा कि जंप करते करते ऐसे ऐसे टकटक, वो बेचारा यदि छोटा है तो बहुत सारे उसमें यदि मोटे मोटे लोग हैं तो बेचारा तुम पर आ जाएगा लोगों के, उछलते उछलते। तो ये इज और नॉट का कॉम्बिनेशन यही चला, इज इधर से फोर्स लगा इधर से, तो क्या हुआ, इजन, एक वो लेटर जो है ना भाई वो ऊपर जंप मार गया, तो हम लोग इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। बातें आ गई समझ में आपको? अब यही काम हर जगह हमको करना है ऑल 24 में। तो इज के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर। तो आर को जब हम यही करेंगे प्रोसेस, बार बार एग्जांपल्स नहीं देंगे, क्या हो जाएगा,
आरंट। क्या हो जाएगा? आरंट। क्लियर है? Yes. और उसी तरह से यदि हम एम को यदि इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आरंट जी है। एमंट को हम लोग प्रायोरिटी न दे करके आर और एम के कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में खास करके हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? आरंट। ठीक है ना? अब इसका मतलब नहीं है कि सेंटेंस में एम और नॉट नहीं होता है। आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ सिंगर होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड की जब हम बात करेंगे तो प्रायोरिटी किसको देना है हमें? आरंट को। तो आगे आइए, इज आर एम, उसके बाद क्या होता है? वाज। और वाज को हम लोग इसी तरह से करेंगे, क्या बनेगा? जस्ट टेल मी, वेरी सिंपल थिंग्स आर wasn't and after that where plus not क्या हो जाएगा? weren't। ये सब तो मुझे उम्मीद है आपको पता है। आगे आइए, हैज के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। hasn't। अगला क्या है हमारा? हैव के नॉट के साथ क्या हो जाएगा? haven't। is it visible? clearly just watch it। yes। next, had plus not hadn't। अब आपको कहानी समझ में आया ना कि कैसे ये hadn't हुआ है? वही बस वाला याद रखना है, ठीक है ना? और भी हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन कौन से बचे हुए हैं? डू, डज, डिड। तो आइए मैं बिलो मेंशन कर रहा हूँ। डू को नॉट के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा? डोंट। क्या होगा दोस्तों? डोंट। बोलिए। और डज प्लस नॉट होगा तो क्या हो जाएगा? आई थिंक हमें लगता है आदित्य बहुत बेचारा खामोश है। अरे ब्रेकअप पूरे के क्या मतलब सदमा में हो तुम? हो गया है तो आप उसको अरे फिर मिलेगी नहीं। दुनिया को प्यार बांटिए। हाँ, दुनिया को प्यार बांटने की चीज है। You are not made for everyone. Yeah. You are made for everyone. You are not made for single. Yeah. और one. You are for everyone. और एक हुआ तो दूसरा डिमांड करेंगे। अभी नहीं अगला। तो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं, इसमें क्लास में कुछ बोलते रहिए। अभिनव अब इसका मतलब कि हर समय बोलता ही रहेगा, तो ज्यादा बोलना भी उचित नहीं है। Distribute your love to everyone. So आगे जो हमारा है डू प्लस नॉट डोंट, और डच प्लस नॉट क्या हो जाएगा हमारा? और अगला जो हमारा है डिड प्लस नॉट क्या होगा दोस्तों? चलिए आप एंजॉय भी कीजिए और स्टडी भी कीजिए। तो ये रहा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी को। अब हम लोगों को देख रहे हैं मॉडल को, जल्दी से आप नोट करो। आप लोग कोई भी विद्यार्थी बोर्ड से देख करके नहीं लिखेगा, क्योंकि ये बातें सिर्फ उसके लिए है जो बिगिनर्स है, फ्रेशर्स है, जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन टैग जिन्होंने नाम सुना है। क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। यू आर स्टडिंग, आपको कुछ दिन हो गए, महीनों दिन, इसलिए नाउ यू कैन राइट योरसेल्फ without have or without paying the look over the word। ओके, तो हम लोग मेंशन करेंगे, और मेंशन क्या करेंगे? मॉडल्स को। तो आइए, मॉडल सबको पता है ना? यस। तो मॉडल्स में शुरुआत करते हैं किससे? सेल। तो सेल प्लस नॉट को इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइलेंट। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं साइलेंट, और ऐसा करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, हर वर्ड में गड़बड़ हो ही जाती है। तो ये जो प्रोसेस है सेल प्लस नॉट साइलेंट, ऐसा नहीं वर्ड होता है। हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? और सिमिलर हो जाएगा विल प्लस नॉट ऑन। अब विलेंट नहीं ना? नहीं, रियल तो वही है, कंप्रेस वाली कहानी। विलेंट नहीं कहेंगे, क्या होगा? ऑन। चलिए मैं क्लियर एक ही बार में मेंशन करता हूं। ऑन। क्लियर है दोस्तों? शैल विल, इसके बाद क्या होता है हमारे पास? कैन। और कैन को जब नॉट में मेंशन करेंगे, क्या हो जाएगा? कैन। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कैन प्लस नॉट कैन। और इसी तरह से क्या होता है? मे। और मे को नॉट के साथ करेंगे तो जल्दी बताइए क्या पढ़ेंगे? माइंड। सब एक ही चीजें हैं। और चलिए पांच चीजें, सेल का शुड, और शुड के नोट करेंगे तो दोस्तों शुड। ये तो बातें बिल्कुल लेमन जूस है। रैपर हटाइए, मुंह में डालिए, नहीं चूसना, सीधे सवालों कर, कोई दिक्कत तुक्कत नहीं, ठीक है ना? तो चॉकलेट खाइए, एंजॉय कीजिए, और आगे बढ़ते हैं। और वुड, और वुड को नोट में साथ करेंगे वुडंट। तो ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन टैग में जब भी इस्तेमाल करते हैं तो किसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने बताया है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, ठीक है ना? मैं हम ऐसे एक्सरसाइज लेंगे तो हम लोग बेटर समझेंगे। और फूड को बताओ, फूड प्लस नॉट वुडंट।
हमें लगता है कि आप खुद से कर सकते हो। इसी तरह से मैं सिर्फ मॉडल से लिख देता हूं। कुड के बाद क्या होता है, जल्दी से बताओ। मेक अ माइट, तो माइट के साथ नोट लगाकर जल्दी से प्रोनाउंस करके दिखाओ, माइटेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा बच गया, चलिए यूज टू। ठीक है, तो यूज टू का क्या आप इस्तेमाल करते हो, नेवर, वुडंट। पास्ट में हम कह रहे हैं कि यूज टू को नॉट लगाकर इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग में, जी नहीं। यूज टू का इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस को शो करने के लिए। और इसमें से मैं जब मॉडल्स पढ़ाया था तो मैंने बताया होगा कि मॉडल के लिए कौन सा इक्विवेलेंट होता है, ओल्ड। तो हम लोग उसके जगह पर, उसके बाद मस्ट, मस्ट क्या चलेगा दोस्तों, मस्ट के साथ नॉट लगाएंगे क्या हो जाएगा, और उस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास, डेयर। तो डेयर के साथ इसी तरह से फॉलो होगा, और नीड के साथ भी इसी तरह से फॉलो, नीडंट, डेरंट। चलिए मैं लिख ही देता हूं सारा। आप अब बिगनर्स नहीं रहे, अरे बिगनर्स होता है 1 वीक के लिए, बाकी आप खुद से वर्क करोगे, ठीक है ना। चलिए, किन्हीं को भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, यानी कोई भी स्टूडेंट्स को, चलिए तो ये सारे हमारे पास हो गए। अब आउट टू एक इस्तेमाल होता है, तो आउट टू के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड का, क्योंकि आउट टू किसका इक्विवेलेंट होता है, शुड का। तो अगर सेंटेंस में आउट टू इस्तेमाल किया हुआ है तो आप आउटेंट इस तरह से इस्तेमाल न करके हमें शुड की प्रायोरिटी देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों, ये था, और इसी तरह के जो भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप सपोज रहता है एक एग्जांपल, दिस इज अ बुक, तो आप यदि इसको क्वेश्चन टैग बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ बुक, इजंट दिस। ठीक है, तो दोस्तों कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, वेट एंड वॉच वाली बातें रहेगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।